मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर घर बास ना परियारे। दंडौत बंधन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक देकर हथ। परम सत्कार योग, परम सम्मान योग, चबर छतर तख्त दे मालिक, वालिए कुल आलम, मुजस्मे आबे हयात। बाणी दे बोहित शब्दा अवतार, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे विच ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਤ ਵਿਹਾਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਓ सब तो पहला धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, तिन्हां वल्लों बख्शिश फतेह दे नाल आपां रल मिल के सांझ पाईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले समय तो आपां जपजी साहिब दी विचार शुरू कीती है। कल दास की हाजरी सी गुरदासपुर, किसी माता का भोग सीगा ते उत्थे विचार करन तो बाद संगतां दे नाल 2-4 मिनट बैठन दा विचार करन दा समा मिलिया ते उन्हां चों किसी ने दास की कथा लगातार सुन रही है, फेसबुक ते जिहड़ी लाइव हो रही है। वो भाई साहब किते जलंधर तो गए सीगे ते मेरे नाल जुड़े होणगे। उन्होंने कल उत्थे बड़ी प्यारी गल कही, कहंदे भाई साहब जी मैं तुहानूं 11-12 दिन हो गए लगातार सुन रहा ते कहंदे शायद कहंदे तुसीं हल्ले 5वीं पौड़ी ते कहंदे पहुंचे हो। कहंदे जदों तुसीं शुरू कीती सी मैं कहा 10-15 दिनां विच भाई साहब ने कथा कर देनी है ते चलो कहंदे उस हिसाब नाल सीगा भी 15 दिन होने आ, सुन लैने आ। ते कहंदे अज 11 दिन हो गए, 12 दिन हो गए आ, तुसी हले 5वीं पौड़ी ते हो। फिर उन्होंने विचार अपनी दिती, वो भी अच्छी पोस्ट तो रिटायर होए है। कहंदे भाई साहब जी जपजी साहिब दे विच धन धन गुरु नानक देव जी महाराज ने पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का जिहड़ा सार ना निचोड़ वो जपजी साहिब च रख दिता। मेरे कहण तो भाव कि हर एक सिख नूं तकरीबन इस गल दा अंदाजा है, इस गल दा पता है कि जपजी साहिब दी महानता साडे वास्ते की है। फिर मैं उन्हां नाल एक बचन सांझे कीते। मैं कहा भाई साहब जी अज तो 4 तो 5 साल पहला मेरे दोस्त है बस्ती शेखां दे विच, वो हिंदू फैमिली दे नाल हन, हिंदू परिवार दे नाल हन, हिंदू हन। उन्होंने 4 तो 5 साल पहला दास नूं हुक्म किया, कहंदे भाई साहब जी सानू जपजी साहिब दा कितों अर्थां साहित जिहड़ी व्याख्या वो लिया के दिओ। ते मेरे मन विच भी चौ पैदा होया कि एक जिहड़ा हिंदू धर्म दा है उहदे अंदर मन च चौ पैदा होया ते मैं जल्दी लिया के दियां उन्हां नूं।
मैं 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੀਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਪ ਧਾਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂਬਹੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਪਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ, ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ, ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ, ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੌਪਾਏ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੜਨ ਵਾਲੇ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਤਰਵਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਇਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਆਓ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰਗ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰਗ,
ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ समाई। अगली पंक्ति है जी गुर ईसर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इस पंक्ति ਨੂੰ मैं पहला पढ़ दिया। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना दो तरीकों के विश्राम आते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰ, ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਲਾਉਣਾ, ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਥੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ। ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਦਲ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਉਸ ਸਰਦਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾ ਜਗਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਚਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਵੀ ਬਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਈਸਰ, ਈਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਈਸਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ शिव जी ਨੂੰ। अर्थ कर लगा पहला यदि मैं अखरी अर्थ। गोरख किनू किया गया? बड़े ध्यान दे नाल सुनियो, प्रोफैसर साहब सिंह ने इहदे अर्थ गोरखनाथ कीते है। नाथां दा जिहड़ा नाथ सीगा गोरखनाथ। लेकिन जदों असी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं पढ़दे ना उहदे विच गोरख दी दित्ती होई है परिभाषा। गोरख सो, गोरख कौन है? हु इज गोरख? गोरख सो जिन गोए उठाई, जिन्हें सारी धरती नू उठाया होया, अपने दे चक्या होया, वो गोरख है। ये मैं देखो जदों तुसी बाणी दी गहराई तक जाते हो ना, गो ते रख दो ये अर्थ करो। गो मैंने धरती ते रख मैंने जिन्हें ओदी रखवाली कर रहा। एक ये अर्थ कीते, एक गो दे अर्थ कीते इंद्रियां ते रख दे अर्थ कीते ओदे ते काबू पाउण वाला जिहड़ा हैगा उन्हां नूं कंट्रोल विच करन कर। सो गोरख इत्थे गोरखनाथ नहीं आ रहा, इत्थे गोरख दे अखरी अर्थ आ रहा विष्णु, जिहड़ा धरती की संभाल कर रहा, जो हिंदू धर्म की मनौत के बराबर है। अगे आपां जावांगे फिर इहदे होर अर्थ करांगे आपां इसे पौड़ी इसे पंक्ति दी। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा ते बर्मा दा आप जी नूं पता ब्रह्मा जी, जिन्हां दे हिंदू धर्म के मुताबिक ब्रह्मा जी ने सृष्टि पैदा की है, उन्हां दी मनौत कहंदी पई है। और जिहड़े विष्णु जी हैं वो सृष्टि की पालना कर रहे हैं। और जिहड़े शिव जी हैं जदों जीवां दा समा पूरा हो जाता है तो उन्हां नूं वापस बुला लैंदे हैं। कहण तो भाव अच्छा फिर एक होर देखो गल जी, हिंदुस्तान की धरती ते ब्रह्मा दे मंदिर एक ना दो बने हैं पूरे हिंदुस्तान दे विच, ते शिव जी दे थां थां ते मंदिर ते मूर्तियां लगियां। कारण की है? कारण की है? शिव जी दे इन्ने मंदिर ते ब्रह्मा दा बेचारे दा मंदिर ही एक दो, वो दुनिया डरदी ही मौत तो है ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਆਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਥੈਂਟਿਕੇਟਡ ਹੈ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੰਦਿਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ शिव जी ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਪੂਜਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। क्यों भाई साहब जी? जिस इंसान का डर होवे पूजा भी ओदी कीती जाती है। सो महाराज इत्थे गुर ईसर, ईसर का आखरी अर्थ है इत्थे उन्होंने किया शिव जी। गोरख का आखरी अर्थ किया विष्णु
ਤੇ ਬਰਮਾ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ, ਪਾਰਬਤੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਬਤੀ ਹੈ, ਮਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਤੇ ਧੀਰਜ, ਇਹ ਪੰਜ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਮੰਨੇ ਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਤੇ ਧੀਰਜ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਵੇਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਲ ਜਦੋਂ ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਵੇਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੇਲ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਵੇਲ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੁੱਢ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਸਿਰਾ ਕਿਹੜਾ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰ ਈਸਰ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਔਗਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਦਿਨ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਹੈ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੇ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰਾ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੇ, ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਨੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਈਸ਼ਰ। ਗੁਰ ਗੋਰਖ, ਗੋਰਖ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੈ ਗੋਰਖ ਸੋ ਜਿਨ ਗੋਏ ਉਠਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਰਖ ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਾਰਬਤੀ।
पार्वती क्यों लिया गया जी शब्द, उन्होंने भी क्यों गुरु किया गया। पार्वती दे बारे थोड़ा जिहा आपां, पार्वती शिव जी की पत्नी है जी, ये आप जी नूं पता है, लेकिन उहदा गुण है, उहदा असीं गुण लैना। उहदा गुण की है? पार्वती दी जिहड़ी मत सी ना, निष्ठा जिन्हों कह लीए, वो सीगा अडोल, डोली नहीं हो। इतिहास लिखिया रामायण दे विच, मैं पढ़ के आया सारा, मैं उन्होंने स्टडी किया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ लिखिया कि पार्वती अपने पहले जन्म दे विच ਉਹਦਾ नाम सीगा सती, ते राजा प्रजापत दे घर दे विच ਉਹ पैदा हुई है। उसदे बापू का नाम की सी? प्रजापत। दश, वैसे ਉਹਦਾ पूरा नाम है दश प्रजापत, कईयां ने दखन भी लिखिया प्रजापत, चलो खैर। उसदे घर ਉਹ पैदा हुई। ਉਹ बचपन तो ही शिव जी की पूजा करती सी ते शिव जी नूं ਉਹ प्यार करती सी ते ਉਹਦੇ नाल ही उन्हें विआह करा लिया। ठीक है जी। ਉਹਦਾ नाम सीगा सती, पहला नाम ਉਹਦਾ पार्वती नहीं सीगा। ते की होया, एक बार उन्हें की देखिया, जदों श्री रामचंद्र जी नूं बनवास मिलिया, नाल सीता जी गए ते नाल उन्हां दा छोटा भराता लक्ष्मण जी जंगलां नूं गए, एक तीनों गए। ते जदों सीता नूं चक के लै गया सी रावण, हर के लै गया सी रावण, ते इन्हां दा इतिहास कहंदा पिया, रामायण कहंदी पई है कि रामचंद्र जी ओदी याद दे विच जंगलां विच भटकदे सीगे ते रोंदे पए सीगे, ते पंछियां तो पुछदे पए सीगे भी सीता किधरले पासे नूं गई है, तुसी सीता देखी तां नहीं। ते इस गल नूं ना सती ने देखिया, जिहदा नाम बाद च आपां लवांगे पार्वती। ते सती ने देखिया ते ये की हो रहा, कहंदी ये कादा, कहंदी रब दा रूप है जां ये देवता, कहंदी ये ते कहंदी आम इंसानां दे वांगू रोंदा फिरन दिया। उन्होंने ते शक हो गया। उन्हें की कीता, उन्हें सीता दा रूप धारण करके ते जंगलां विच आके ते किसी दरख्त दे हेठां आके बैठ गई, जिथों दी श्री रामचंद्र ने लंघना सी उहदे रस्ते च बैठ गई। जो उन्हां दे इतिहास लिखिया मैं तुहानूं ओह दस रिहा। ते जदों लाग्गियों श्री रामचंद्र जी लंघण लगे ते कहंदे सती तेरा शिव जी कित्थे है, तू उन्होंने कित्थे छड्ड आई। वो लैन लगी सीगी श्री रामचंद्र जी का इम्तिहान भी ये ते आम इंसानां दे वांग ही रोंदा फिरदिया, जनानी मर गई जां चली गई जां जिद्दां साडे हालात है ते पागल हो जाने आ, जनानी मर जाए जां, चलो वैसे सच्चे पातशाह दे अगे अरदास करिए भी इदां दा ना होवे, पर उदां आपां गल करदे ते कहंदे ये ते आम इंसानां वांग रोंदा फिरन दिया, पंछियां नूं पुछदा फिरन दिया कि मेरी सीता कित्थे चल गई, मेरी सीता किसी ने देखी होवे। वैसे तुहानूं मैं एक बेनती करां, असी एक पंछी का नाम पढ़ते हैं चकवी। चकवी चकवी नूं इतिहास कहंदा श्री रामचंद्र ने बनवा दिता सी सराप, क्योंकि चकवी ने उहदा मजाक उड़ाया ते श्री रामचंद्र ने कहा जा चकवीए जे तू इदां करदी है ना ते तू भी अपने खसम ना तेरा मिलाप नहीं होगा। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बचन है, चकवी जो निस बीसरे आए मिले प्रभात, रात नूं अपने खसम तो बिछड़ जाती है, समुंदर दे आसे पासे घूमती है, किते जाके दिने उहदा मिलाप हुंदा। कहंदे भी तू भी सारी हर रोज रात नूं, कहंदे मैं ते हुण विछड़िया ना, तू कहंदे हर रोज रात नूं कहंदे अपने प्रीतम तो वख होवेगी। ये उन्हां दा इतिहास कहंदा पिया। चलो अगे चलीए आपां। ते ओ सती ने आके सीता दा रूप धारण करके बैठ गई दरख्त दे थल्ले, ते श्री रामचंद्र जी लंघण लगे ते कहंदे तेरा शिव जी कित्थे है। ओ बेचारी जदों इन्नी गल सुनी ते शर्मिंदियां हो गई, उथों उठ के चली गई। हुण इस गल का पता शिव जी नूं लगा भी पार्वती ने सती ने सीता का रूप धारण किया, ते शिव जी ने उदण तो लैके उन्हों अंगीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि शिव जी सीता नूं माता का रूप मानते सी।
अपनी मां मानते सीगे। उन्होंने कहते तू तो मेरी फिर मां मैं, तू उहदा रूप धारण कर लिया, अज तो बाद तू मेरे अंगी अंग दे नाल नहीं लगेगी, अज तो बाद तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। वो बेचारी दुखी हो गई पार्वती, सती जी का पहला नाम सीगा। हुण दूसरा कारण की होया, इहदे बापू ने कीता यज्ञ कीता, ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਯੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਆਉਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਲਦਾ ਸੋਹਾ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਏ ਸੱਪ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਏ ਸੱਪ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮਸਾਨਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਾਸੋ ਹਾਣੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਧੀ ਦਾ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦਿਆਂ ਯੱਗ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੱਚੀਆਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਸੱਦਿਆਂ ਯੱਗ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਯੱਗ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਈ ਸੱਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯੱਗ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਤ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਰਵਤੀ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿਮਾਲਿਆ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਾਰਵਤੀ। ਪਾਰਵਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਰਾਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਡਮਰੂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਗੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਵਤੀ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ शिव जी नाल विआह कीता ते हुण फिर तू इस बारी फिर कह रही है कि मैं ते शिव जी नाल ही विआह कराउणा। तैनू पता नहीं वो अक धतूरा खांदा, ओदी खुराक ये है जहर, वो मसाना दे विच रहिंदा। तैनू पता नहीं उन्हें गल दे विच सप लटकाए हुए आ, तैनू पता नहीं वो सोहा मलदा अपने शरीर नू। ते तू इदां कर, तू विष्णु नाल विआह करा लै, देख विष्णु कितना सुंदर है। ते उत्थे ना रामायण दे विच लिखिया, जन्म जन्म की रगर हमारी, रगर मैंने जिद, जन्म जन्म की रगर हमारी, वरों सुंभ नत रहो कुवारी। कहंदी मैं सिर्फ ते सिर्फ सुंभ, सुंभ मैंने शिव जी नाल, शिव जी दे नाल ही विआह कराउणा, नहीं ते मैं कुवारी रवांगी कहंदी सारी उमर। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਾਰਵਤੀ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी, रख लीनी हर मेरी। ना ते कहंदे तुसी डोलना ते ना कहंदे मैं डोलना तुहाडे नाल, रख लीनी हर मेरी, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। इत्थे महाराज ने शब्द वरतिया गुर ईसर, गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई। कहंदे गुरु ही साडे अंदर दे जिहड़े काम क्रोध औगन है उन्हां नूं संघारन वाला है, गुरु ही शुभ गुणां नूं पैदा करन वाला है, ते गुरु ही शुभ गुणां दी संभाल करन वाला है, ते गुरु ही ऐसा है जिहड़ा साडे अंदर निश्चा अडोल जिहड़ा मत जिहड़ी अडोल है वो सानू देन वाला। इत्थे महाराज जे असी पार्वती माई नूं थोड़ा जिहा सोच लईए ना कि शायद ओदी पूजा करन दी गल कर रहे ते पार्वती नूं महामाई भी कहा गया। ते गुरु ग्रंथ साहब की पंक्ति है, महामाई की पूजा करे
नर से नार होए अवतरे, तुम कहियत हो आद भवानी, मुक्त की बरिया कहां छपानी। कहते तू अपने आप ਨੂੰ कहनी है कि मैं ही सब कुछ हैगी आ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, शिव शिव करत जो नर ध्यावे, बरद चढ़े डोरू टमकावे। महाराज कहते, बाबा नामदेव जी का बचन है, कहते हौ तो एक रमैया लहू आन देव बदलावन। कहते मैनू एक कहते रमैया रब मिल जावे, मैं 33 करोड़ देवी देवते तेरी मैं कहते टोकरी दे कहते छाबे विच पा के उन्होंने तोल दियां, ते दूजे पासे रमैया परमात्मा वो मैं कहते चक लवां। आन देव, आन मैंने बाकी सारे, देव मैंने देवते, बदलावन दे हूं, बदलावन मैंने बदले दे विच मैं तेनू ओ दे दियां, हो तू एक रमैया लै हूं। महाराज बाबा कहण तो भाव इस पौड़ी ते इस पंक्ति ते मैं तां जोर ला रहा कि किते ये ना समझ लेना कि गुरु ही साडे वास्ते ब्रह्मा है, नहीं, ये सानू भाव अर्थां विच जाना पवेगा कि गुरु नू क्यों इत्थे ईश्वर शब्द वरतिया, क्यों गोरख वरतिया, क्यों, क्योंकि एक विद्वान दे कोलों गलती होई स्टेज ते उन्होंने मुड़ के सही करने वास्ते कई समा लग जाता। इस करके मैं इस पंक्ति ते बिल्कुल ध्यान दे नाल होश ते आवास नाल जो मैं ग्रंथां नूं पढ़िया उन्हां दे हिसाब नाल दूसरा गुरु ग्रंथ साहब जी दी मत जो कहंदी है उहदे हिसाब दे नाल, क्योंकि महाराज ने ब्रह्मा नूं इन्हां नूं ते माया दा रूप मन्निया, इन्हां नूं माया दा रूप मन्निया। अगे आऊगा एका माई जुगत बियाई, तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दी बाण। अगे महाराज कहंदे जिव तिस भावे तिवे चलावे। इन्हां तो उपर भी इन्हां दा बापू बैठा होया, असी बापू दे कोल पहुंच करनी है, ना कि असी रस्ते विच पहुंच करनी है, असी विचोलियां दे कोल पहुंच नहीं करनी। ये गुरु ग्रंथ साहब दा फलसफा की सीधे गुरु दे नाल। इत्थों तक गुरु गोबिंद सिंह जी भी ये गल कह गए है कि मैनू नहीं किसी ने कहते पूजा करनी, कहते परमात्मा की पूजा करो, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। फिर महाराज कहते गुरु गोबिंद सिंह जी कहते जो हब को परमेश्वर उचरे सब नरक कुंड में पड़ है। आलो जी ये गुरु गोबिंद सिंह वचन है, कहते जेड़ा मैनू रब करके मनूगा ना वो नरकां दा भागी होऊ। कहते हुण इस तों वध कुछ होर नहीं ना साडे कोल प्रमाण। जो हमको परमेश्वर उचरे सब नरक कुंड में पड़ है। ये गुरु गोबिंद कहते भी मैनू नहीं मनना, मैं सिर्फ तुहानू उन्हां दा एक फलसफा परमात्मा दा फलसफा जिहड़ा दसन आया। ते मैं एक बारी बेनती कीती सीगी, गुरु नानक देव जी तो पहला जितने भी होए है ना उन्होंने हर एक लुकाई नू अपने पैरां नाल जोड़िया। ते गुरु नानक देव जी कहते मेरे पैरां नू छड्डो, परमात्मा दे चरण फड़ो, सीधे डायरैक्ट। मैं तैनू दसन आया भी इन्हां नू छड्डो ते उन्नू फड़ो, उन्हां ने ही तेरा पार उतारा करना। गुरु नानक जी दा अपने आप नू कह रहा, नानक नीच कहे विचार। चलो अगे चलीए आपां। जे हूं जाना, जे मैं उस परमात्मा दी बख्शिश दे नाल, इहदे अर्थ करने हैं, जे उहदी बख्शिश दे नाल मेरे अंदर थोड़ा जिहा चानना हो भी गया, पता लग भी गया, ते महाराज कहते आखा नाही मैं उहदे बारे कुछ नहीं बयान कर सकदा। असी बचन पढ़दे ना, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन न साकू, तू ठाकुर ऊच भगवाना। ते बाबा कबीर जी कहते सात समुंदह मस करूं, कलम करूं बन राय, बसदा कागत जो करूं, हर जस लिखन ना जाए। समझ गए? बाबा कबीर जी कहते 7 समुद्रां दा पानी लैके मैं ओदी स्याही बना ला, इन्नी स्याही इकट्ठी कर ला। कलम करूं बन राय, बन राय मैंने जेड़ी आसे पासे बनस्पति उगी है ओदी बना लवां, एक बना लवां कलम, एडी वड्डी कलम।
फिर कहते बसदा, बसदा का आखिरी अर्थ है धरती, धरती सारी नू बना लवां कागज, पर परमात्मा तेरियां सिफतां इन्नियां मैं तां भी नहीं लिख सकता। हर जस लिखन ना जाए, हर जस लिखन ना मैं तेरी सिफत कहते नहीं। फिर एक होर प्रमाण जी, तू अकथ क्यों कथिया जाई, तैनू नहीं कहते कोई बयान कर सकता परमात्मा तू कौन है। इत्थे आ महाराज गल कह रहे हैं, जे हूं जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई, जे तेरी बख्शिश दे नाल मैनू थोड़ा बहुता चानना तेरे बारे हो भी गया, पर मैं फिर भी तेरे पूरे गुणा नू बयान नहीं कर सकता, मैं तेरे गुणा दी विचार नहीं कर सकता। महाराज इत्थे अपनी निम्रता शो कर रहे हैं। जे हूं जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई। अगली पंक्ति जी गुरा, बड़े ध्यान दे नाल इनू गुरा शब्द कहना। मैं बहुत गुरु घरां दे विच इह सुनिया गुरा रारे ते बिंदी लाई है। जे रारे ते बिंदी लगेगी मेरे प्यारिओ ते ओ बन जाएगा बहुवचन। गुरु साडा एक है, जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटी है। सिर्फ काया ने ही रूप बदलिया, जोत गुरु नानक देव जी दी ही चलदी आ रही है गुरु गोबिंद सिंह जी तक। ते सिख ने काया दे नाल नहीं जुड़ना, सिख ने जोत दे नाल जुड़ना। बड़े ध्यान नाल असी अरदास भी हुण तुसी सुननी है, 10 पातशाहियां दी जोत। हाँ चलो आत्मक जोत आपां कह ली, जो मर्जी कह लीए, वो तो असीं सत्कार दिंदे आ। 10 पातशाहियां दी जोत, और फिर वो बैठी कित्थे है? धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। इहदा मतलब साडा गुरु एक है। आ गल दा ख्याल करना। गुरा एक देह बुझाई, हे गुरा गुरु मैनू एक इस गल दे बारे दस दे कि सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाए। इत्थे मैं थोड़ा रुकना चाहांगा। सारी सृष्टि दा मालक एक है, इको ही है। मुसलमान उन्नू अल्लाह करके याद कर रहा, हिंदू वीर उन्नू श्री रामचंद्र श्री राम कह लीए जां श्री कृष्ण कह लीए, उन्हां दी अपनी अपनी है ना। ते जिहड़ा ईसाई है वो उन्नू गॉड कह के याद कर रहा, ते जिहड़ा सिख है वो उन्नू वाहिगुरु कह के जां रब कह के, जिस तरह मर्जी कह लीए, वो उन्नू याद कर रहा। लेकिन महाराज कहते हैं ये सारियां दी चारां दी अपनी अपनी समझ है। कोई अल्लाह कह रहा, कोई उन्नू रहीम कह रहा, कोई उन्नू कुछ कह रहा, कोई उन्नू कुछ कह रहा। लेकिन वो जिथे बैठा होया ना, रस्ते तो वख वख हो सकते हैं उहदे कोल जाण दे, पर मंजिल सारियां दी एक ही है। इत्थे महाराज सारी लुकाई नू एक थां ते लिया के इकट्ठा कर दिंदे आ। कहंदे कोई गल नहीं, तू अल्लाह कह, तू रहीम कह, तू करीम कह, तू राम कह, तू किसी होर नाम दे नाल लै, परंतु एक गल गुरु नानक देव जी कहंदे दृढ़ करियो कि सबना जियां का एक दाता, सो मैं जिहड़ी सो मैं विसर ना जाई ना, ये अरदास है। ये अरदास है कि वह मैनू भुल ना जावे। आपां अरदास ही करदे ना कि मैनू भुल ना जावे। सबना जियां का एक दाता, वो सानू दातां दे रहा जी। चलो आपां एक दो उदाहरण ले लीए दातां दियां भी। पहला आपां पेट की गल करिए, खाण की गल कर लीए, है ना। सब तो पंगा ही इहो ही पाउंदा वै, क्योंकि पैदा ही होया तो पहला आउंदे ही बच्चे नूं भुख लगी। मैं उधर भी गल कीती सी, किड्डा पिछे हलवा के आया, पहले प्यार लगा थन दुध। आउंदियां पहला मां दे कोलों दुध मंगिया, होर गल नहीं पुछी, मां तेरा की हाल है, किद्दां तू इन्ना टाइम कढिया, हो नहीं पुछया। आउंदे ने पहला दुध मंगिया, मां दुध दे मैनूं। फिर मां ने कहती चलो कोई नहीं पुत मैं तेनों दे देनी है। ते कल ना मां ते मैं बेनती करके आया, मां दा जिगरा किते देखिए, इन्ना विशाल जिगरा ना। बाबा कबीर जी ने मां नूं रब दे बराबर रखिया। बाबा कबीर दा एक बचन है, कहंदे मां देख, कहंदे रब कहंदे मेरियां गलतियां माफ करदा, ते तू भी मेरियां गलतियां माफ कर दे। ते मां बच्चे दियां गलतियां हर रोज माफ करदी है। वो बचन है जी, सुत अपराध करत है जेते
जननी चीत न राखस तेते, सुत ओदा बच्चा रोज गलतियां करदा, मां रोज माफ करदी। रोज मां नाल नाराज हुंदा ते मां पता की कहंदी, कहंदी पुत 5 वज गए है, तेरा बापू काम तो आउण वाला, आजा पुत आपां सुलह कर लईए, ओदे आउण तो पहला तैनू भी दबके मारेगा ते मैनू भी दबके मारेगा। ये मां दा हिरदा। सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखस तेते, राह मैया हूं बारिक तेरा, कहे ना खंडस अवगन मेरा। अगे बाबा कबीर जी कहंदे ए ते बच्चे दियां गलतियां मां माफ करदी है, ते जे किते बच्चा जवानी विच वड्डा हो के मां नूं धक्का भी मार दवे, मां दे चपेट भी मार दवे, मां तां भी कहंदी है कोई गल नहीं पुत तू मेरा ही है, जे मैनू मार लिया तां की हो गया। जे अत करोप करे कर धाया, अत करोप गुस्से विच आके मां ते चढ़ाई करे, जे अत करोप करे कर धाया, तापी चीत ना राखस माया, तां भी मां नहीं याद करदी। मां दा हिरदा बड़ा विशाल है, मां दा हिरदा बहुत विशाल है। इसे लिए महाराज कहंदे, गुरु ग्रंथ साहब जी कहंदे, महाराज कहंदे ज्यों जननी सुतजन पालती, राखे नदर मिझार, अंतर बाहर मुख दे गिरास, खिन खिन पोचार। बच्चे नू पालने विच पा के मां काम करदी है, ते काम करदी करदी दौड़ के आउंदी है, बच्चे दे मूंह दे विच दुध पा दिंदी है, उहनू भुख लगी होनी है। अंतर बाहर मुख दे गिरास, खिन खिन पोचार, ते कला दुध नहीं पाउंदी, पहला ओदा आके मूंह चुमदी है। ये मां दा हिरदा जी, बड़ा विशाल हिरदा मां दा। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने मां नू बड़ा सत्कार दिता, सो क्यों मंदा आखिए। खैर मैं उस पासे ज्यादा ही चला गया। महाराज कहंदे गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, दद्दा दाता एक है। मैं पेट की भुख की गल कर लगा पहला। दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, देंदे टोट न आवी, अगनत भरे भंडार। वो तेरे पेट की भुख भी जिहड़ी है दूर करता है, तेनू दाता दे रहा। दूसरा प्रमाण पेट की भुख का, दीनन की प्रतिपाल करे नित। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सवैया उन्हां दा, दीनन की प्रतिपाल करे नित, संत उबार गनीमन गारे, पच पशु नग नाग नरातिव, सर्व समय सबको प्रतिपारे पोखत है। जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचारे, दीन दयाल दया निध, दोखन देखत है, तेरे माड़े कर्म भी देखदा पिया हो, पर माड़े कर्म देख के अपना देने वाला हाथ नहीं पीछे करता पिया। दोखन देखत है पर देतना हारे, ये तो है पेट की भुख। होर दाता है ना, महाराज दे अगे ये अरदास करिए, सब तो वड्डी दात उन्हें सानू की दिती है जी। रमैया के गुण चेत पराणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। केड़े ओदे गुण है रमैया के गुण, केड़े गुण चेते कर। जिंतु साज सवार सिंगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उभारिया। पहला परमात्मा ने मां दे गर्भ दे विच पाउण तो पहला साडी उहने शक्ल देख लई है बड़े ध्यान नाल। जिंतु साज, दूजा काम सवार, तीसरा काम शिंगारिया। एक मिस्त्री घर बनाउंदा, वो साजिया, फिर उहदे विच प्लस्तर करदा, वो सवारिया। फिर जांदियां जांदियां जदों सारा काम उहदा फिनिश हो जांदा, फिर घरदियां नूं कहंदा कि मैं आखिरी टच दे दियां कि तो नुक्करता नहीं टुट गई। यह है शिंगारिया। परमात्मा ने सानू तिन्ने काम कीते। इस पंक्ति नू बड़े गहर तरीके नाल सोचो। जिनतू साज सवार शिंगारिया, फिर अगे आ रहा गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया। फिर उन्हें मां के गर्भ सानू भेजिया। पहला उन्हें साडी शक्ल देख लई है भी ये जिन्नू मैं बनाया ये दुनिया दे विच किद्दां दा लगेगा, इहदे विच कोई कमी तां नहीं। पर बड़े दुख की गल है मैनू, साडियां धीआं सज्जन ते सवरण दे वास्ते ब्यूटी पार्लर जा रही। साडे बच्चे सज्जन ते सवरण दे वास्ते नाइयां दे कोल जा रहे। परमात्मा दी साज दे उपर उन्हां नूं विश्वास नहीं रहा। जिनतू साज सवार शिंगारिया,
गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया। फिर महाराज कहते बार विवस्था तुझे प्यारे दूध, जदों तू बचपन दे विच सी तैनू दुध दिता, पर जोबन भोजन सुख सूद, जदों तू जवान होया तेरे दंद आ गए तैनू भोजन दिता खाण वास्ते। हुण मैनू ये दसो जवानी दे विच इस पंक्ति दे विच कित्थे नशे दी गल आ रही है, कित्थे नशे दी गल आ रही है? ये तो साडा कंसैप्ट है ही नहींगा। गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकन दा मतलब की पता की है? तुदनो निवन मनन तेरा नौ। निवना तां है जे तेरी गल मननी है ते माफ करना, नहीं ते फिर वो भी जुत्तियां मारदा पिया बैठा उपर। कहंदा मनना ते है नहीं, आके की तू ओ शिकारी दे वांगू आके तू नीवा हो रहा, जिउ हंता मिर्गाए सीस नवाइए, क्या थी हजारे दे कशुद्धे जाए। महाराज कहते कोई फायदा नहीं। कहते फिर दोबारा सब तो वड्डी दात की है कि उन्हें 5 तत्तां दा पुतला बना के सानू इस रूहे जमीन ते भेजिया। सब तो वड्डी ये दात है। साडे हथ पैर उन्हें लगा के भेजिया, अखां ला के भेजिया देखण वास्ते, जबान लाई है, मूँह लाया है खाण वास्ते, हथ लाए है काम करन वास्ते। महाराज कहते रमैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार शिंगारिया, गर्भ अगन में जिने उबारिया, बार विवस्था तुझे प्यारे दूध, पर जोबन पूजन सुख सूद, बिरद भया ऊपर साक सैन। ध्यान नाल सुनो इस पंक्ति दी अर्थ। बिरद भया ऊपर साक सैन, जे तेरे कम जवानी दे विच चंगे आ ना ते बुढ़ापे दे विच बच्चियां ने तां तेरे मूँह च रोटी पानी है, नहीं तो नहीं पानी। बिरद भया ऊपर साप साक सैन, मुख अप्याऊ बैठ को देन। मुख अप्याऊ बैठ को देन, वो तेरे मूँह दे विच निवाला तां पानी है जे बच्चियां दे, जे जवानी दे विच कर्म चंगे कीते आ। ये गुरु ग्रंथ साहब दा बचन है जी, मेरी अपनी फिलॉसफी नहीं है। महाराज कहते हैं ए निर्गुण गुण कशू न सुची। तू नहीं कहते इस गल नूं कहते समझ सकिया। सब तो वड्डी दात की है जी कि उन्हें सानू इस रूहे जमीन ते भेजिया है। वो एक अगली गल कह के मैं संपदा वाल आवां, है वो एक, पर वो एक जगह ते नहीं है, वो सारियां ते सारे थावां ते मौजूद है एक, लेकिन एक जगह ते नहीं, वो सारियां जगह ते मौजूद है। इसलिए महाराज कहते सबना जियां का एक दाता सो मैं विसरना जाई। उन्होंने ना कहते आपां भुल जाइए। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। इस दे अर्थ ना अगली पौड़ी विच फिर आउणगे, क्योंकि ये पंक्ति आखिरी वारी 2 बारी आई है। सो अगली पौड़ी दे विच फिर ये अर्थ होणगे। सो साध संगत जी इन्नियां को बेनतियां अज तक प्रवान करनियां, माफ करना हुण तक प्रवान करनियां, भुल्लां चुकां खिमा करनियां। कल नूं आपां 6वीं पौड़ी दे नाल सांझ पावांगे। सो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की